Hello everyone, welcome to the biology classes and biological world. Today we will discuss an interesting topic of the biology, that is heart. Yes, of course, heart is really a very interesting topic. Even it is the very sensitive, delicate part of the body. Although several times for our emotions, for our feelings, we used to blame our heart, right? We think हमारी लाइफ में जितने भी शापे हैं वो सारे के सारे all because of this hurt, but actually this is not because of the hurt. Okay, if you talk biologically, heart is just helping to pump the blood, so it is a pumping organ of the body, pumping organ of the body. Okay, the main role of the heart in the body is just to pump the blood. Okay, now first let's see that heart is mesodermally derived. Heart is mesodermally derived organ of body. Okay, see dear friends, basically all parts of the body, all organs of the body are derived mainly from three layers. Okay, all the parts, all the organs of the body are derived from main three layers of cell. One is mesoderm, the other two are ectoderm and endoderm. Okay, so heart is basically mesodermally derived. Our skeletal system is also mesodermally derived. Okay, so it is mesodermally derived. When we talk about location where the heart is located in our body, so it is usually between two lungs. Okay, it is located between the two lungs and tilted towards the left of lung. Tilted towards left lung. Okay, of course the heart is lies between the two lung, but actually heart is more towards the left lung. Let me show you that. This is the right lung and this is left lung. Okay, and on this left lung, on the lower portion, there is a invagination in the lung. Okay, जो लंग का लोअर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इनर साइड पे होता है, तो ये जो स्पेस है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस. इन दिस एम्प्टी स्पेस heart lies. Okay, and this is the reason left lung is always smaller than the right lung. आपकी जो right side वाली lung होती है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है as compared to the right side lung. Okay, रीज़न आज आपको पता लग गया है कि जो आपकी लेफ्ट साइड वाली लंग होती है, why it is smaller than the right side, because few portion, a small portion of the left lung is given to the heart. Fine. Okay, अब अगर आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, एक्चुअली कन्फ्यूज़न, ठीक है, कि दिस इज़ माई राइट हैंड, right, I am using my right hand but I am writing left here. Okay, but why I am writing left here, क्योंकि ये लंग का लेफ्ट साइड है. ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो दिस इज माई लेफ्ट साइड ना, तो ये मेरी लेफ्ट साइड की लंग के बारे में बात कर रही हूँ मैं, राइट, एंड दिस इज माई राइट, सो दिस इज द राइट लंग. ओके, तो आपका हार्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है. ओके, तो ये कन्वेंशन आपको ऐसे, मैं ऐसे करके बात नहीं करूँगी. ओके, जब भी मैं अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करूँगी तो मैं ऐसे बात करूँगी. दिस इज़ माई राइट साइड एंड दिस इज़ माई लेफ्ट साइड. सो दिस इज़ द लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज़ द राइट लंग. तो हमारे हार्ट कहाँ पे है, tilted twisted towards the left side of the lung. Fine, good. तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं. ओके, अभी जो हमारे लंग्स है वो बेसिकली कहाँ पे है, in thoracic cavity. Thoracic cavity.
Okay, actually reason, complete body is divided into the several region like head region, then neck region, where ribs lies. Okay, ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, this is the head region, right? Then this is the neck region. After the neck region आपके shoulders के बाद क्या है? Where lungs lies, where rib cage lies, that is the thoracic region. The stomach part, the belly part is abdominal region. Okay, below the belly part, that is the pelvic region. Okay, so this is head region, then neck region. Basically 5 region होते हैं, 5 region or 5 major parts of the body. First is head, second is neck, below the lung thoracic, where lungs lies, heart lies, rib cage lies. Okay, fourth is abdomen, जो आपका स्टमक वाला पार्ट होता है, बेली वाला पार्ट होता है, जहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एब्डोमेन पार्ट. आफ्टर द एब्डोमेन इज द pelvic part. Okay, after the abdomen is the pelvic part. यहाँ पे आपका earlier tail region था, but now human being do not have the tail, otherwise ये pelvic part में tail region include होता है. Fine, तो 5 region है. तो thoracic I think आपको समझ आ गया. तो heart lies in the thoracic cavity between the 2 lungs and tilted towards the left side of the lung. Now what's the size of the heart? Size of the heart is fist. ठीक है, तो फिस्ट हमारी ये होती है, तो आपकी फिस्ट का जितना साइज है उतना आपका हार्ट का साइज है. दिस इज द जनरल क्राइटेरिया कि आपके फिस्ट के साइज जितना आपका हार्ट का साइज होता है. ओके, देन आप जनरल से अपना हार्ट जैसे भी आप ड्रॉ करते हो आर्ट में, क्राफ्ट में, या फिर नॉर्मल जो आप हार्ट का सिंबल्स बनाते हो. फॉर फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस सिंबल ओनली, है ना. इस तरीके से आप कुछ हार्ट का सिंबल बनाते हो, तो ये हमारा वही हार्ट का सिंबल है. This heart has a protective layer. That protective layer is called protective layer of heart. Protective layer. Which one is? Pericardium. Okay. So pericardium आपकी 2 हो जाएंगे. One is inner and second one is outer. Okay. So this is the outer. Okay, and this one is the inner. Between those 2 layer we have space. अब ये 2 लेयर है तो 2 के बीच में यहाँ पे स्पेस बच गया ना मेरे पास. एक आउटर वाला हो गया, एक इनर वाला लेयर हो गया. तो यहाँ पे इन बिटवीन जो आपका स्पेस बच जाता है, दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. ओके, दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. व्हाट्स दैट फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, दैट इज फिल्ड विद pericardial fluid, and this pericardial fluid is responsible to protect the heart. ये pericardial fluid आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम शॉक, एनी मैकेनिकल इंजरी. Okay, further this heart is also protected by rib cage. Protected by rib cage. Okay, so first pericardium, 2 pericardium layer are protecting the heart, and further एक और protection दी हुई है, that is by the rib cage. Okay, so this is basically the outline, the basics of the heart, that it is a pumping organ of the blood. Pumping organ is basically pumping the blood. It used to pump the blood to the body. It is mesodermally derived organ of the body. It lies basically in the thoracic cavity between the 2 lungs and usually tilted towards the left lung. Okay, size is of fist size, protected by the pericardium, inner pericardium and the outer pericardium.
two layers, between the two layers space is filled by pericardial fluid. This pericardial fluid basically prevents the heart from the shock in the mechanical injury, and of course simultaneously it is protected by the rib cage. In addition to the heart, I told you about 5 regions of the body, that is head, neck, thoracic, abdomen and pelvic region. Okay, let's move on to the next. Okay, do you know heart is internally divided into 4 chambers? Let's draw the diagram of the heart. I'll draw the same diagram as is expected by you, as is not expected by you or expected by you. I don't know आप क्या expect कर रहे हो, कैसे वाला diagram बनेगा, but मैं आपके लिए वही diagram बना रही हूँ that is liked by you. ठीक है, कुछ ऐसा ही हाथ का आप आउटर बनाते हो, ठीक है, आउटलाइन बनाते हो. दिस इज द आउटलाइन ऑफ द हार्ट. ओके, देन हार्ट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. ओके, हार्ट क्या है, दैट इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. तो दिस इज द 1 चैम्बर, दिस वन इज 2nd चैम्बर. ओके, देन दिस इज 3rd chamber and 4th chamber. Okay, so 1, 2, 3, 4. How many chamber does heart have? 4 chamber. Okay, these 4 chamber are 2 upper chamber and 2 lower chamber. Fine. Upper chamber are known as atria. नाम तो हमें देना पड़ेगा ना, एवरीथिंग हैज़ अ नेम. हम अपर चैम्बर को खाली अपर चैम्बर नहीं बोल सकते. वी विल गिव अ नेम टू द अपर चैम्बर, दैट इज एट्रिया और ऑरिकल. इट कैन बी कॉल्ड एज ऑरिकल. टू लोअर चैम्बर दे आर नोन एज वेंट्रिकल. वेंट्रिकल. अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर एट्रिया और ऑरिकल. लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर वेंट्रिकल. तो 2 अपर चैम्बर है, 2 लोअर चैम्बर. सो दीज आर द एट्रिया एंड दीज आर द वेंट्रिकल. ओके, ये थोड़ा सा ठीक है. कंप्लीट अप टू दिस. ओके, तो ये हमारा हार्ट हो गया विद द 4 चैम्बर. नाउ दिस इज द, अब आप ऐसे करके देखो, दिस साइड, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस वन इज द राइट. सो दिस साइड इज द, ये जो आपकी ये वाले जो 2 चैम्बर है क्या है, लेफ्ट साइड. ओके, और ये वाले जो चैम्बर है वो क्या है, राइट साइड. सो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब साथ साथ करते जाओ, और ये साथ साथ करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा इसे करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट बी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाओ कि मैं बहुत अच्छे से आज इस चीज़ को कर रहा हूँ, और आज मैं इस क्लास में बैठा हूँ या बैठी हूँ तो ये तो चीज़ मैं पक्का सीख कर ही जाऊँगा. ओके फाइन. अगर हमने किसी चीज़ को टाइम दिया है तो उस टाइम को यूटिलाइज करके एटलीस्ट हमें उसको कुछ तो यूटिलाइजेशन अच्छे वाला करना चाहिए. ठीक है, तो आज आपको ये हार्ट के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से सीख के जानी है, जो आप कभी नहीं भूलने वाले हो. तो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज राइट ऑरिकल. मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑरिकल और एट्रिया इज द सेम. ओके, दिस इज राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ओके. फर्दर, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेटेड है एक दूसरे से. एट्रिया एट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये अलग है और ये अलग है, और इनके बीच में दीवार है. अब ये जो इनके बीच में दीवार है, ओके, राइट एंड लेफ्ट. ओके फाइन. राइट एंड लेफ्ट.
ये दोनों सेपरेटेड है, ये दोनों भी सेपरेटेड है। राइट वाला बिल्कुल अलग है और लेफ्ट वाला बिल्कुल अलग है। अपर वाला बिल्कुल अलग है और लोअर वाला बिल्कुल अलग है। ऑल फोर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अगर आप ऐसे बात करोगे, लेफ्ट और राइट की बात करोगे तो भी ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। आप अपर और बिलो की बात करोगे देन ऑल्सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ओके। सो ये जो दीवार है, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम, ओके। व्हाट डू वी कॉल दिस वॉल of separation between the right and left side? Septum. Right and left side are separated by septum, ठीक है। अब वो क्या सेप्टम है? ये दोनों एट्रिया एट्रिया ना, राइट साइड का एट्रिया, लेफ्ट साइड का एट्रिया, राइट साइड का ऑरिकल, लेफ्ट साइड का ऑरिकल। सो दे आर सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो अब आप मुझे बताओ वेंट्रिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। द सेप्टम वर्ड इज फॉर द सेपरेटिंग वॉल। द सेप्टम वर्ड इज फॉर द सेपरेटिंग वॉल। तो राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकल, ओके। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये दोनों भी सेपरेटेड है, तो ये क्या है? एट्रिया, ये क्या है? वेंट्रिकल। तो अपर एंड लोअर चैम्बर आर सेपरेटेड बाय, ये अपर और लोअर है ना, अपर एंड लोअर चैम्बर आर सेपरेटेड बाय, क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टम क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एट्रिया एट्रिया के बीच में सेप्टम है, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है। तो वेरेवर यू फाइंड इंटर एट्रियल सेप्टम मीन्स सेपरेशन बिटवीन द एट्रिया एंड एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि सेपरेशन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मीन्स separation between the atrioventricular septum between atria and ventricle, ओके। अलग अलग एक ही उसके अंदर, एक ही एरिया के अंदर आपने 4 चैम्बर बना दिए, चारों को एक दूसरे से सेपरेट भी कर दिया, ठीक है। अब सेपरेट तो आपने कर दिया, बट वी नीड अ चैनल टू मूव फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर, right? We need a door, we need a window so that we can cross from the one chamber to the another chamber. We can communicate from the one chamber to another chamber. Okay? अब देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। दिस इज लेफ्ट साइड। आपका जो लेफ्ट साइड होता है, blood है, it is having the blood, okay? And the role of blood is to transport the things. Main thing to be transported by blood is respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. Now blood is filled in the heart, okay? Blood is filled in the heart and this blood has oxygen and carbon dioxide, okay? इस heart के अंदर blood filled है, okay? Heart is filled with blood, okay? This blood has O2 and CO2, okay? हार्ट के अंदर पूरा ब्लड है, ब्लड के पास O2 CO2 है, बट आपके पास चैम्बर है ना, तो चैम्बर का कुछ तो लॉजिक होगा। अब लॉजिक क्या है कि आपका जो लेफ्ट साइड है, ओके, दैट हैज़, लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मीन्स व्हाट? O2 रिच ब्लड। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से घोट के पी जाओ। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 रिच ब्लड, ओके। अब आपकी बच गई राइट साइड, तो दूसरी क्या बचेगा मेरे पास? CO2। इट मीन्स राइट साइड, आपकी जो राइट साइड है दैट हैज़ deoxygenated blood, and deoxygenated means what? D means deoxy,
oxygen is not present. Okay, wherever the word D used as a prefix with something, it means that thing is not present there. If I'm saying deoxygenated, absence of oxygen, absence of oxygen. If I'm saying decarboxylation, means absence of carbon dioxide. If I'm saying dehydration, means absence of water. ओके आपका डी वर्ड जहाँ पे भी जिसके भी साथ लगता है प्रीफिक्स में, अगर आपने डी वर्ड यूज़ किया है तो इट मीन्स डी के साथ जो भी वर्ड एसोसिएटेड है दैट इज नॉट प्रेजेंट देयर. डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट. डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सेंट. डिहाइड्रेशन, वाटर इज एब्सेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, इन द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, मीन्स दिस इज CO2 रिच ब्लड. CO2 रिच ब्लड. ओके फाइन. ब्लड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो इन दोनों को तो आपस में कम्युनिकेट करने की नीड नहीं है. ओके, राइट साइड विल नॉट कम्युनिकेट टू द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड विल नॉट कम्युनिकेट टू द राइट साइड बिकॉज दे आर अपोजिट टू वन अनदर, दे आर एंटी टू वन अनदर. ये एक दूसरे के एंटी है, और जो लोग एक दूसरे के एंटी होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं एंड दे आर नॉट ऑन विजिटिंग आवर्स. वो आपस में बातचीत करते ही नहीं हैं क्योंकि वो दुश्मन हैं. वो एक दूसरे के साथ एक साथ बैठना ही नहीं चाहते, एक्सचेंज करना ही नहीं चाहते. और अगर वो एक्सचेंज हो गया बाई चांस, गलती से अगर वो एक्सचेंज हो गया तो वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा. और जो विस्फोट होता है दैट इज़ अ डेंजर, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. तो हमें क्या करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड को तो कम्युनिकेट कराना ही नहीं है. ओके, राइट साइड इज नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विद द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड पे टोटली ऑक्सीजनेशन रहेगा और राइट साइड पे टोटली डीऑक्सीजनेशन रहेगा. ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट गोइंग टू मिक्स अप विद वन अनदर. तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ दिस हार्ट कि ऑक्सीजन बिल्कुल अलग रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अलग रहती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक एंड ऑक्सीजन इज लाइक अमृता. ओके, this is good for the body. The oxygen is good for the body, so body needs the oxygen. Carbon dioxide is toxic for the body, so carbon dioxide need to be outside the body. Okay, so this is not going to be mixed up with one another. और ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे तो बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी बिकॉज बॉडी विल गेट कंप्लीट प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसमें कोई मिलावट नहीं होगी. ओके फाइन. बट यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है. ठीक है, अब इस ब्लड को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा. क्यों आना पड़ेगा, पंप करना है ना ब्लड को. पंपिंग मीन्स व्हाट, आप किसी चीज़ को पंप कर रहे हो तो उस चीज़ को बाहर निकालना है. अब इस ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना है. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है लेफ्ट साइड पे, तो ब्लड को बाहर निकालेंगे, पंप आउट करेंगे तो दैट ब्लड विल सर्कुलेट इन द बॉडी. ओके, ये राइट साइड पे यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे भी पंप करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ब्लड को बाहर निकालना है. क्यों निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, पंप आउट करेंगे तो बॉडी से बाहर. ओके, out of the body. So left side blood will be pumped out to circulate into the body. Right side blood will pump out to remove it out of the body, to expel it out of the body. Okay, so there is a need to communicate between the upper and lower chamber of left side, upper and lower chamber of right side. तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन कराना है. इट्स अ नेसेसरी, इट्स द नीड ऑफ द टाइम. अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, हाउ. तो यहाँ पे डोर्स बना देते हैं. क्या करें, यहाँ पे डोर बना दो, कुछ विंडो टाइप. ओके फाइन. तो वी विल कंस्ट्रक्ट हियर द विंडो. अब वो विंडो किस फॉर्म में होती है, वॉल्व की फॉर्म में. ठीक है, तो ये वॉल्व बना दी हमने. यहाँ पे भी हमें वॉल्व बनानी पड़ेगी, ये भी हमने वॉल्व बना दी. ठीक है, अब ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन बिटवीन द अपर चैम्बर एंड द लोअर चैम्बर. और ये क्या चीज़ है, दिस इज वॉल्व, दिस इज वॉल्व. ओके, वी नीड सम स्पेस. यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है. लेट मी हैव अ क्विक रिविजन. हार्ट इंटरनली हैज़ 4 चैम्बर. ओके, दीज 4 चैम्बर आर upper chamber and the lower chamber. 2 are upper and 2 are lower chamber. Upper chamber are named as atria or auricle. Lower chamber are known as ventricle. Okay, then
We have left side of the heart and right side of the heart, left auricle, left ventricle, right ventricle. All these four chambers are separated from one another. Interatrial septum separates the right and left side of the atria. Interventricular septum separates the right and left side of the ventricle. And upper and lower chamber are separated by atrioventricular septum. Then I told you left side is purely oxygenated blood, right side is for deoxygenated blood. Okay, fine. Now we need the communication between upper chamber and lower chamber so that blood can pump from the upper chamber to the lower chamber, from the lower chamber to the body and out of the body. ये हमें फिर से लिखना पड़ेगा. This is the right auricle, this is right ventricle, okay, and this one is the left ventricle. Then upper and lower chamber are connected by valve. Okay, valve basically क्या है, which make a connection between the upper chamber and the lower chamber. Okay, तो अब ये जो हमारी valve है on the right side, between, हम कैसे लिखेंगे इसको, between right chamber. Okay, यहाँ पे जो ये वाला जो है right side पे, this valve is, we call it as tricuspid valve. Okay, और ये जो left side पे है, this is bicuspid valve. Okay, तो आपका right chamber के बीच में, right chamber means what does it mean? Between right auricle and right ventricle. Which valve is? We have tricuspid valve. Okay, then between left auricle and left ventricle, which valve? बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, which valve? Bicuspid valve. This is bicuspid valve. Another name of bicuspid valve is mitral valve. Mitral valve और आपकी जो bicuspid valve है वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास tricuspid है. Tricuspid means three valve. यहाँ पे मेरे पास bicuspid है. Bicuspid means 2 valve. ओके, अब ये जो valve होती हैं, आपको पता है घर पे जो टैप वगैरह लगे हुए हैं उसमें वॉल्व फिट की हुई है ना, तो उस वॉल्व के बेसिस पे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड एंड मेंटेन. फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड एंड मेंटेन, तो इट मीन्स वी कैन क्लोज दैट वॉल्व, वी कैन ओपन दैट वॉल्व. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन द हार्ट, दिस bicuspid and tricuspid valve can be opened and can be closed. ठीक है, when there is need to flow the blood from the upper chamber to the lower chamber, when there is need to flow the blood from upper chamber to the lower chamber, bicuspid and tricuspid valves open. Okay, then they will, after pumping, pushing the blood into the lower chambers, the valve get closed. Valve get closed. So why they get closed? ये जो valve है वो क्या कर रही हैं? They are making the communication connecting the upper and lower chamber, also prevent backflow of the blood. Backflow of blood. This is the main role of this valve. कि blood यहाँ से यहाँ पे तो आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद blood हार्ट से बाहर जाना चाहिए, वो वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, बैक फ्लो नहीं जाना चाहिए. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ जो है बैक गियर लग जाता है, गाड़ी में है जैसे फ्रंट पे गाड़ी हमारी आगे चलनी चाहिए पर बैक गियर लगता है तो पीछे आती है ना, तो यहाँ पे हार्ट के अंदर हमें बैक गियर लगाना ही नहीं है. हार्ट एक बार यहाँ से यहाँ पे गया तो फिर ये यहाँ से यहाँ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ बैक स्टेप नहीं कर सकता. ओके, तो हार्ट हैज़ द कंपल्शन दैट
blood will flow from the upper chamber to the lower chamber and from lower chamber to the out. It is going to be out of the heart. It has no option to look back. Okay, so this is ensured by the valve, bicuspid and tricuspid valve within the heart. Okay, fine. अब कुछ और चीज़ें कर लेते हैं अबाउट द चैम्बर्स ओनली. आप एक चीज़ देख लो, आपके जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, ऑरिकल्स है, दे आर स्मॉलर इन साइज. ओके, आपके जो लोअर चैम्बर हैं दे आर लार्जर इन साइज. ओके, एट्रियाज आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, वेंट्रिकल्स आर लार्जर इन साइज. ओके, आपके जो एट्रिया हैं, एट्रिया स्मॉल चैम्बर. ओके, वेंट्रिकल आर लार्जर चैम्बर. और इस वेंट्रिकल के अंदर भी आपका जो आ रही लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल. ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है आपका. आपको आज तक हो सकता है ये चीज़ पहले से पता हो कि जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका साइज़ कम होता है. जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है. ठीक है, अपर चैम्बर आर स्मॉलर देन द लोअर चैम्बर. बट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर करोगे, इफ़ यू कंपेयर द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आपका जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कुछ इस तरीके से किया कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से साइज में बड़ा दिख रहा है. ठीक है, तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है दैट इज स्मॉलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर. ठीक है, अब इसका एक रीज़न मैं आपको यहीं से बता देती हूँ. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसे पूरी बॉडी में जाना है. ठीक है, तो पूरी बॉडी हमारी बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियस है यहाँ से ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम होना चाहिए. ओके, जो आपका राइट वाला वेंट्रिकल उसका साइज़ छोटा है. ठीक है, साइज़ छोटा है, उसे सिर्फ लंग्स तक जाना है और लंग्स के बाद उसे बॉडी से बाहर निकल जाना है. ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी है. राइट, नीड ज़्यादा है. और यहाँ पे कि आपको सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, क्योंकि उसके अंदर CO2 है, CO2 को पंप करके बाहर भेज देता है. फाइन. ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके यहाँ पे जो वॉल होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये जो सैप्टम होता है वो थिन होता है. ठीक है, आपका जो ये वाला सैप्टम है दिस इज थिन, और ये वाला वेंट्रिकल्स के बीच का जो सैप्टम होता है दिस सैप्टम इज बेसिकली थिक. इंटर वेंट्रिकुलर सैप्टम क्या है? थिक है आपका. और ये वाला जो इंटर एट्रियल सैप्टम दिस इज थिन. ओके, इसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसे बहुत हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना होता है. तो अगर आप किसी चीज़ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, पावर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बियर दैट फोर्स, दे कैन बियर दैट पावर, दे कैन बियर दैट प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स को क्या है कि पूरे ब्लड जो ब्लड का वॉल्यूम है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है, इस तरीके से सर्कुलेट करना है कि एक बार पंप किया जाए तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस से हार्ट के पास आ जाए. यस, यहाँ से पंप होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा ब्लड, पूरी बॉडी में एक चक्कर लगा के वापस से हार्ट के पास आ जाएगा. तो यहाँ से इतना प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए, और इतना प्रेशर बिल्डअप होगा तो ऑब्वियसली बात है जो वॉल है उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी कैपेबल होनी चाहिए दैट दे कैन बियर दैट स्ट्रेस ऑफ द प्रेशर एंड द फोर्स. ओके, होप आई थिंक मैक्सिमम जो इंटरनली है हार्ट का वो मैंने कवर अप कर दिया है. ओके, we will continue with the same topic in the next class. Hope you understand the concept of the heart, the chambers of the heart, the different minute things about the heart that may not only help you in the board exam, in your academic exam, but also in the NET. Okay, if you have the aspirant of the NET exam, AIMS exam, okay, it also help you in the various competitive exam that is based on the science or the biology. Thank you. Enjoy your life. Bye.